पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मीन्स जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव करनी है उस मूव करने का जितना वर्क है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट्स its formula is V is equal to W upon Q. Potential difference V, work done W, and quantity of charge move is Q. तो this is formula, but इसको अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? वी कैन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। सेल लगाओगे तो उतना चार्ज मूव करेगा, जितनी बड़ी बैटरी लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज जो है वो फ्लो करता जाएगा। देन नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ वोल्ट एंड डिनोटेड बाय V. Then what is definition of 1 volt? The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another. अब इसे आपने याद करना है 1 वोल्ट, बट आप इसको कूलम एंड जूल को कैसे याद करेंगे? जो हमारा फॉर्मूला था V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q, उसमें हमने इनकी SI यूनिट रख देनी है। वर्क की है जूल एंड देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज की है कूलम। सो जूल अपॉन कूलम विच इज़ इक्वल टू 1 volt. And now how potential difference is measured? It is measured with the help of voltmeter. वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। एंड इसको अब हम कनेक्ट कैसे करेंगे सर्किट में? इसे हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल। अभी आपको पैरेलल और सीरीज़ का अभी मीनिंग पता नहीं है, तो अभी फर्स्ट वीडियो के लिए आप याद कर लो कि अगर ये दोनों ऐसे लगे हुए हैं इट मीन्स दिस इज पैरेलल। क्लियर? Our next topic is electric current. Definition of electric current is the electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. Means 1 second में जितना electric charge move करेगा एक conductor में that is known as electric current. Its formula is I is equal to Q upon T. What is Q? Q is quantity of charge and T is time taken to pass this charge in a conductor. Next, SI unit of current is ampere. Ampere इसकी SI unit है। कहाँ से derive करनी है? From this formula. We have formula I is equal to Q upon T. Q में इसका SI unit put करना है कूलम and time में इसका SI unit put करना है second. So, definition of 1 ampere is what? It is when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. Means किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा, जितने कूलम्स चार्ज फ्लो होगा उतने एम्पियर हमारा करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में से। Next is the instrument that is used to measure current, which is ammeter. Means ammeter से हम करंट के फ्लो को चेक करते हैं। ये कैसे लगाते हैं हम सर्किट में? इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ मीन्स जब एक ही लाइन में दोनों चीज़ें लगी होंगी, ammeter and conductor, that is known as series. This is series connection. Clear? Our next topic is Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law is at constant temperature, the amount flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Means जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जितना करंट मूव करेगा इन अ सर्किट दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स I is directly proportional to V and V is directly proportional to I. When we remove this proportionality sign, we put one constant.
That constant is R. And R is what? R is resistance. तो R को हम कैसे लिख सकते हैं? R is equal to V upon R. Clear? R means resistance. Resistance is potential difference upon current. तो हम resistance को कैसे define करेंगे? It is the ratio of potential difference applied between the ends of the conductor and the current flowing through it is called a resistance. Resistance. तो resistance के फॉर्मूला से हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं which is I is equal to V upon R, which is very very important. Means current is directly proportional to potential difference, directly proportional to, and inversely proportional to resistance, which is R. Means जितना directly proportional means जितना potential difference increase करेंगे उतना current increase हो जाएगा. Inversely proportional to का मतलब अगर हम resistance increase करेंगे तो current कम हो जाएगा, resistance कम करेंगे तो current ज़्यादा हो जाएगा. Now again SI unit of resistance. Resistance की SI unit क्या है? Ohm, which is denoted by this omega sign. अब define कैसे करेंगे ohm को? 1 ohm is said to be the resistance of a conductor such that when potential difference of 1 volt is applied to its ends and current of 1 ampere flows through it. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. पहले हमने इसमें ओम्स लॉ किया है तो अभी हम जूल्स लॉ करेंगे. इट्स इम्पॉर्टेंट. तो व्हाट इट से, it states that when a current I passes through a conductor of resistance R for time t, then the heat developed in a conductor is equal to the product of square of current and resistance and time. सो ये क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी कंडक्टर में करंट आई पास करते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये टाइम टी, मतलब टाइम यहाँ हमने टी लिया है, तो उसमें एक हीट प्रोड्यूस होगी. वो हीट किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ तीन चीज़ों के. आई का मतलब करंट स्क्वायर, रेजिस्टेंस आर एंड टी टाइम. इसका जो आंसर है वो ये आएगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. इसी के कोडिंग हमने डेफिनेशन बनाई है. तो हाउ कैन इट प्रूव? इसको हमने प्रूव करना है. तो ये कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज द डेरिवेशन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसी तरह हम कह रहे हैं कि कोई कंडक्टर है जिसमें आर रेजिस्टेंस है, करंट है, एंड जैसे कि हम कोई भी करंट पास करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को रोकता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए कुछ हीट प्रोड्यूस होगी. तो दैट हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये आज हमने निकालनी है. तो सबसे इसकी एग्जांपल ये है कि आयरनिंग, जैसे कि हम कपड़े प्रेस करते हैं या हीटर चलाते हैं, ठीक है, एसी या चार्ज पे लगाते हैं अपना, तो थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है. ये चार्ज पे या एसी का जो रिमोट है वो भी गर्म हो जाता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ हीट. सो कितनी